ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടി വരണം. നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമ മഹത്വം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നാം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം. നാം സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം. എവിടെ നാം ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും, ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വചന കേൾവി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. വചനം കേൾക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് മൂലം നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചതിക്കുന്നവരായി തീരും. നാം വചനം കേൾക്കുകയും വചനം അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം മറ്റാരെയുമല്ല ചതിക്കുന്നത്, സ്വയത്തെയാണ് ചതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്വയത്തെ ചതിക്കുന്നവരായി തീരാതെ, നാം നമ്മെ തന്നെ ചതിക്കുവാനിടയായി തീരാതെ, ദൈവം കേൾപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും തീരുമാനമെടുക്കുവാനിടയായി തീരണം. അങ്ങനെയാണ് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകുകയും നമുക്ക് ആ വചനം മൂലം അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, വചനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടത് ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ദൈവം നമ്മെ താങ്ങി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. അതിൽ താങ്ങി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ അനേകം വചനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ദൈവം നമ്മെ താങ്ങുന്നു. ഇന്നും അതിൻ്റെ ബാലൻസായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു സങ്കീർത്തനം 63:8 നമ്മൾ വായിച്ചു. എല്ലാവരെയും ദൈവം താങ്ങുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം താങ്ങുമോ, ആരെയാണ് ദൈവം താങ്ങുന്നത് എന്ന്, താങ്ങി നിർത്തുന്നതെന്ന് 63:8 പറയാണ്. നിന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു, നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ താങ്ങുന്നു. ബസ് परमेश्वर सबको थाम कर रखेगा क्या, सबको थाम कर रखेगा क्या, किसको थामेगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. उधर लिखा है जिसका मन परमेश्वर से चिपक गया है, जिसका मन परमेश्वर का निकट है, उनमें एकदम चिपक गया है, उसको परमेश्वर थाम कर रखेगा करके उधर से मालूम पड़ता है. तो हम परमेश्वर में है क्या, हम परमेश्वर में चिपक कर जीने वाला व्यक्ति है क्या, हमारा हर एक जीवन का पल में हम परमेश्वर से चिपक कर जीते क्या करके अपने आप को जांचो. परमेश्वर आने वाला दुखी अवस्था से, अनर्थ से हमें बचाने के लिए हमें परमेश्वर के सन्निधि में चिपक कर बैठना पड़ेगा. हालेलुया, हालेलुया. 145 भजन संगीता में 15वीं वचनम पढ़ेंगे. 145 भजन संगीता 15वीं वचन ऐसा लिखा है, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിന്നെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു, നീ തൽസമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, നീ തൃക്കൈ തുറന്ന് ജീവനുള്ളതിനൊക്കെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും തൽസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല താങ്ങി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. തക്ക സമയത്ത് यथासमय कौन सा समय में हमें ज़रूरत है उस समय हमें खाना देगा और हमें थाम कर रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. क्या करना मांगते हैं? हमारा दिल परमेश्वर से चिपक जाना मांगते हैं, हमारा नज़र परमेश्वर को देखने वाला बनना मांगते हैं. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്തോ ചെയ്യണം?
നമ്മുടെ കണ്ണ് ദൈവത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ദൈവത്തെ നോക്കുന്ന കണ്ണാണോ ആണെങ്കിൽ വീഴുന്നവരെ ഒക്കെയും ദൈവം താങ്ങി നിർത്തും. हमारा नजर परमेश्वर में है तो हमारा दिल परमेश्वर से चिपक गया तो परमेश्वर हमें गिरने के लिए नहीं देगा. हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम. और परमेश्वर का भजन संगीता में 94 का 18 में उधर लिखा है, 94 का 18 ऐसा लिखा है, എൻ്റെ കാൽ വഴുതുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവേ നിന്റെ ദയ എന്നെ താങ്ങി. ഹിന്ദി में पढ़िए. हालेलुया. म्यूट खोल कर पढ़िए. मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा मैं तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया. हालेलुया. हमारा पैर फिसलने के लिए लगेगा तभी यदि हमारा नजर परमेश्वर में है तो, हमारा दिल परमेश्वर को दिया है तो जरूर हमारा फिसलने का समय परमेश्वर को मालूम है. हालेलुया. परमेश्वर से चिपक जाने वाला एक व्यक्ति का पैर फिसलेगा तो परमेश्वर को मालूम पड़ता है. हालेलुया. तो परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया हमें थाम कर रखेगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. हालेलुया. എൻ്റെ കാൽ വഴുതുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ എന്നെ താങ്ങി. വഴുതിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വഴുതി വീഴും എന്ന് തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ. हालेलुया. लगा है मैं गिरेगा करके लगा तो परमेश्वर का प्रवृत्ति आरंभ हो गया. हालेलुया. तो वो प्रवृत्ति जल्दी का जल्दी आरंभ होने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? परमेश्वर में एकदम से हमारा नजर लगाना मांगते हैं. हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम. धन्यवाद प्रभु. हालेलुया. 118 का भजन संगीता 118 में 13 पढ़िए. 118 का 13 ऐसा लिखा है, ഞാൻ വീഴുവാൻ തക്കോണം നീ എന്നെ തള്ളിയെങ്കിലും യഹോവ എന്നെ സഹായിച്ചു. तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ा, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की. हालेलुया. तूने मुझे धक्का दिया. कौन? परमेश्वर नहीं है, शत्रु. हालेलुया. शत्रु शैतान हमें धक्का देकर गिराने के लिए कोशिश करने का समय है. परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमें थाम कर रखते हैं. हालेलुया. यदि हमारा नज़र परमेश्वर में है, परमेश्वर के ओर हमारा नज़र है तो, हमारा दिल परमेश्वर में है तो शैतान धक्का देगा तो हम गिरने के लिए परमेश्वर देगा नहीं. हालेलुया. तो हमारा नजर किधर है? यदि हम गिर गया तो हमारा नजर हट गया है, दूसरा कोई चीज़ में हमारा नजर हो गया है, इसके लिए हमें थाम कर रखने के लिए परमेश्वर का हाथ नहीं आते. हमारा नजर किधर है? दुनियादारी में है, हमारा जड़ी का जीवन में है, हमारा धन संपत्ति में है, हमारा काम में है, हमारा बच्चे लोग में है. हमारा नज़र उधर से हटाकर हमें परमेश्वर में हमारा नज़र लगाना पड़ेगा. हालेलुया. हमारा नज़र इधर भटकते रहते हैं. यदि हमारा नज़र भटकते रहते हैं तो परमेश्वर में से हमारा नज़र हट गया तो परमेश्वर हमें थामेगा नहीं. इसके लिए हमारा नज़र को भटकने के लिए नहीं देने का, हमारा दिल को भटकने के लिए नहीं देने का. हमारा दिल और नज़र परमेश्वर में लगा कर रखने का करके भजन संगीता में बोल कर दे रहे. तो मार्कस सुसमाचार में हमें देखने के लिए मिलते हैं, उसका 4 का 36 हम पढ़ेगा तो
तो 36-37 पढ़ेगा तो उधर एक यीशु मसीह और उनका चेले लोग नदी के उस पार जाने के लिए जहाज में बैठा करके हमें उधर से मालूम पड़ता है, नाव में बैठा करके मालूम पड़ता है। तो नाव में और वे यीशु भीड़ और को हाँ पढ़ूं? हाँ थोड़ा सा पढ़िए। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वहाँ आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? हालेलुया। उधर से हमें मालूम पड़ता है आंधी तूफान वो लोग का जहाज को डुबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर का बच्चे लोग, जो परमेश्वर में जीने वाला बच्चे लोगों को धक्का देकर गिराने के लिए कोशिश करने वाला शैतान, हालेलुया, उधर हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर के चेले लोग और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस जहाज में जा रहे करके शैतान को मालूम पड़ा। तो शैतान क्या किया? उस पानी में उतरा। हालेलुया। पानी में कोई अभी शांत रहने वाला पानी में कोई शक्ति उतरेगा तो वो पानी एकदम हिलेगा। हालेलुया। देखो उधर तूफान के समान शैतान उधर प्रवृत्ति कर रहे हैं। तूफान के समान आप बच्चे लोगों को गिराने के लिए, परमेश्वर का बच्चे लोगों को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको डुबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी में वो नाव में यीशु मसीह भी है। देखो शैतान कितना चाल चलाता है। देखो कैसा भी करके यीशु मसीह को और यीशु का चेले लोगों को नाश करने के लिए उधर कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी हमें याद रहना मांगते हैं, हम परमेश्वर का बच्चा बन जाएगा तो, परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए कोशिश करेगा तो हमारा पीछे शैतान उसका प्रवृत्ति आरंभ करेगा। हम तो शक्तिशाली बनकर एकदम परमेश्वर में नजर लगाकर हमें परमेश्वर से एकदम लग कर जिएगा तो ही शैतान से जीत सकते हैं। देखो शिष्य लोग भाग कर गया वो यीशु मसीह को जगाया। हालेलुया। यीशु में वो लोग नजर लगाया। हालेलुया। तो यीशु में नजर लगाएगा तो क्या हो गया? यीशु उठकर उसको बोला, चुप जा, थम जा। तो यीशु में नजर लगाकर हमें जीना बहुत ही जरूरी है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തിയേക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് വെള്ളം കുലുങ്ങുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വെള്ളത്തിൽ വലിയ ശക്തിയോടെ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളത്തിൽ തിരയുണ്ടാകുന്നത്. तो लहरा क्यों आता है? हवा एकदम जोर से पानी में मारने का समय आता है। हालेलुया। इसके लिए पानी में कौन हवा बनकर उतरा है? शैतान उतरा है। हालेलुया। तो ये लहरा असली हवा का नहीं तो तूफान बनकर आया हुआ ये शैतान देने वाला लहरा था, नाव को डुबाने के लिए कोशिश किया। तो परमेश्वर का मुंह में हमारा नजर गया तो परमेश्वर उसको शांत कर दिया। हालेलुया। हमारा भी जीवन में शैतान उतरते हैं कभी कभी। हालेलुया। हमारा जीवन में शैतान उतरते हैं। हमारा जीवन में शैतान उतरेगा तो बहुत हलचल हो जाएगा। हालेलुया। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കയറി വരും. हालेलुया। शैतान हमारा जीवन में आएगा तो भी
यही अवस्था होने वाला है, बहुत हिलाएगा। हालेलुया। शैतान हमें बहुत हिलाएगा, मगर हमारा नजर परमेश्वर में है तो, हमारा दिल परमेश्वर में चिपक गया तो शैतान को हमें ज्यादा समय हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। आमीन। स्तोत्र। भजन संगीता 41 देखिए, भजन संगीता 41 में तीन पढ़ेगा तो, യഹോവ അവനെ രോഗശയ്യയിൽ താങ്ങും, ദീനത്തിൽ നീ അവന്റെ കിടക്കയെല്ലാം മാറ്റി വിരിക്കുന്നു. യഹോവ എന്നോട് കൃപ തോന്നി എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ, നിന്നോടല്ലോ ഞാൻ പാപം ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. हालेलुया। परमेश्वर यदि हमारे परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ है, तो हमारे जीवन में आने वाला शैतान देने वाला हर एक बंधन को, रोग का बंधन है तो भी, हमें धक्का मार कर गिराने के लिए आया तो भी, कौन सा भी अवस्था में भी शैतान हमें तकलीफ देने का समय, हमें छुटकारा देने के लिए हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ रहेगा। यदि हमारा नजर उधर इधर हट गया तो परमेश्वर का सानिध्य हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमारे मन को जो रोग आ जाता है, हमारा शरीर को रोगात्मा पकड़ते हैं, और कौन सा भी अवस्था में है तो भी यदि परमेश्वर में हमारा आश्रय है तो परमेश्वर हमें थाम कर रखेगा, हमें चंगाई देगा। हालेलुया। स्तोत्र। योग का पुस्तक में दूसरा अध्याय में 7वां वचन हम पढ़ेंगे। യഹോവ സാത്താനോട് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് സാത്താൻ യഹോവയോട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യഹോവ സാത്താനോട് നീ എന്റെ ദാസനായ ജോബിന്മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ? അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടാകുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ. हालेलुया। देखो शैतान क्या करते हैं करके उधर लिखा है, हिंदी में पढ़िए। के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। नीचे तब अय्यूब खुजलाने के लिए बस 7वां वचन पढ़ो? मैंने पढ़ा। 7 ही पढ़ा, 2 में 7 ना। हाँ, അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധി വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഇയ്യോബിനെ 7 नहीं था ना, 3 पढ़िए। 7 8 यहोवा ने किसका? हाँ 7 है। ओ 2 में 3 ना। हाँ यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने देखो, को बिना कारण उबारा से तो भी वो बिना कारण से सत्यानाश करने के लिए आने वाला शैतान है। हालेलुया। कोई कारण नहीं है, शैतान को हम कुछ नहीं करते हैं, मगर शैतान बिना कारण से हमें नाश में डालने के लिए आता है। हालेलुया। क्यों बिना कारण वो आते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हम परमेश्वर में जीने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास ना करें, ये सब चाहते हुए वो उसका खुद का इच्छा से हमें नाश करने के लिए आते हैं। देखो, योग को उसका सिर से लेकर पाँव तक उसको पूरी तरह से रोग से बाधित किया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। शैतान रोग बोझने वाला व्यक्ति है। हालेलूया। രോഗത്തെ വിതയ്ക്കുന്നവനാണ് സാത്താൻ. ഹാലെലൂയ.
मन में रोग डालते हैं और शरीर में रोग डालता है। हालेलुया। मन से गलत चिंता कराता है। हालेलुया। मन में हमारा गलत चिंता डालकर हमारे अंदर हमें रोगी बनाता है। हालेलुया। तो ये सब शैतान का काम है करके हमें जानकार होना मांगते। हम जानकार होकर हम परमेश्वर में हम एकदम लगातार लगे रहेगा तो शैतान हमें कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। लूक का सुसमाचार हम पढ़ेगा तो 13 का 11 में उधर लिखा है, रोग आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है करके उधर लिखा है। रोग बंधनमायुम रोग आत्मावाയിട്ടും നമ്മുടെ മേൽ വരും। रोग आत्मा बनकर हमारे अंदर आता है, रोग बंधन डालकर हमारे अंदर आता है। ये सब शैतान का चाल लेकर के हमें उधर से मालूम पड़ना मांगते हैं। उधर झुका हुआ स्त्री के बारे में उधर लिखा है, लूक का सुसमाचार 13 का 11 में लिखा है, एक झुका हुआ स्त्री चर्च में आया करके उधर लिखा है। उसके अंदर रोग का आत्मा था करके लिखा है। हालेलुया। जो 18 साल से, मेरे को लगता है 18 साल से करके उधर लिखा है, ये 18 साल से रोग आत्मा उसको एकदम से चुकाया करके उधर लिखा है। परमेश्वर की ओर नजर उठाने के लिए नहीं दे रहे। हालेलुया। उसको नीचे ही देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के ओर नजर उठाने वाला को चंगाई मिल जाता है। तो परमेश्वर की ओर नजर न उठाए, इसके लिए अब्राहम का संतान होने वाला उस स्त्री को झुका दिया है। हालेलुया। तो हम अब्राहम का संतान बन गया है, हमारे अंदर रोग आत्मा है, तो हमें मालूम पड़ना मांगते हैं ये शैतान का काम है करके मालूम पड़ना मांगते हैं। हमारा नजर परमेश्वर की ओर उठाने का नहीं, यही चिंता शैतान का है। हालेलुया। इसके लिए हमारा रोग बंधन को निकालना चाहते हैं तो ये रोग आत्मा को निकालने के लिए एक ही व्यक्ति शक्तिशाली है, वो हमारा यीशु प्रभु है। हालेलुया। यीशु ने मात्र में ये रोग आत्मा को निकाल सकता है। उनके पास पहुंचकर उनके ऊपर नजर उठाकर देखना मांगते हैं। കൂനിയായ സ്ത്രീക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൂനി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്താൻ കഴിയില്ല. അവൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. അവളുടെ ഉള്ളം ദൈവത്തിലേക്കാക്കി കാണും. ഹല്ലേലൂയ. അവളുടെ ഉള്ളം ദൈവത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് യേശു തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അവളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. हालेलुया। उसको उसका झुका हुआ शरीर है, इसके लिए उसका नजर परमेश्वर की ओर उठा नहीं सकता है, मगर उसका दिल परमेश्वर से चिपक गया है। ये यीशु प्रभु को मालूम पड़ा। यीशु प्रभु आकर उसको चंगाई किया तो उधर भी शत्रु लड़ने लगा। हालेलुया। पल्ली प्रमाणी लोग, वो चर्च का बड़े बड़े लोग आकर बोला, शबत में संडे का दिन तुम्हें चंगाई नहीं दे सकेगा, तू बाकी 6 दिन है, वो 6 दिन आके चंगाई दे दो। वो रोगात्मा से बाधित होकर झुका हुआ स्त्री को सीधा किया तो भी शत्रु लड़ने लगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। यीशु प्रभु से लड़ाई किया। हालेलुया। देखो, हमें चंगाई देगा तो भी यीशु प्रभु से वो शैतान लड़ेगा। हालेलुया। हमारा चंगाई शैतान चाहता नहीं है। हम परमेश्वर में चिपक जाने के लिए शैतान चाहता नहीं है। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार जिए, वो शैतान चाहता नहीं है। इसके लिए कोई लोग बपतिस्मा लेने के लिए पीछे हटते हैं, कोई लोग वचन पालन करने में पीछे हटते हैं, कोई लोग बोलते हैं मैं जैसा करते आया वही मैं करेगा।
स्तोत्रम पापा। हालेलुया। हालेलुया। कल में गए हफ्ते में मैं एक जन को बात किया तो बोलने लगा विग्रह, यीशु प्रभु का विग्रह जो ब्लेस कर कर फादर लोग लेके घूमते हैं करके, स्तोत्रम स्तोत्रम। शैतान का चाल। हालेलुया। तुम्हारा नजर विग्रह से हटना नहीं मांगता है, इसके लिए शैतान का चाल है वो विग्रह के ऊपर तू ब्लेसिंग करने से वो यीशु प्रभु बन जाएगा करके सिखा रहा है। स्तोत्रम स्तोत्रम। मनुष्य विग्रह को ब्लेसिंग करेगा तो यीशु प्रभु बनता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे यीशु प्रभु विग्रह नहीं है, हमारे यीशु प्रभु जिंदा परमेश्वर है, मर कर जीव उठा हुआ परमेश्वर है। इसके लिए कोई भी मनुष्य का ब्लेसिंग्स उनका विग्रह को ब्लेस करेगा तो वो जीवित नहीं होता है। हालेलुया। उसको जीवित करने के लिए कोई मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है, वो खुद जीव उठा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए हमारा ये गलत चिंता निकाल कर हमें यीशु प्रभु में, जिंदा यीशु प्रभु में हमारा विश्वास को लगाना मांगते हैं। हालेलुया। फादर लोग ब्लेसिंग करने से विग्रह प्रवृत्ति नहीं करेगा। आमीन आमीन। हमारा विश्वास में जीवन आने से परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए प्रवृत्ति करेगा। हालेलुया। इसके लिए हमारा गलत विश्वास को छोड़ना मांगते हैं। हमारा गलत विश्वास हमें हमारा स्वर्गराज नष्ट कराते हैं। हालेलुया। यही शैतान चाहता है, यही शैतान चाहता है हम स्वर्गराज ना पहुंचे। इसके लिए यीशु प्रभु का कोई विग्रह ब्लेस करने से यीशु नहीं बनता है। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ इसके लिए परमेश्वर के सन्निधि में हम हमारे गलतियों को क्षमा मांगकर हम समर्पण करेंगे। दाऊद बोल रहा है मेरा बंधन को यीशु प्रभु ने खोल दिया। हालेलुया। शैतान लोगों को बांध लेते हैं, उसका मन को बांध लेते हैं, അവന്റെ മനസ്സിനെ കുരുടാക്കുന്നു, അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനെ സാത്താൻ കുരുടാക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദാവീദ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളെ ദൈവം അഴിച്ചു കളഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ब्लेसिंग फादर लोग ब्लेस करने से ये विग्रह प्रवृत्ति आरंभ करेगा करके हमें हमारा मन को, हमारा ब्रेन को बांध लिया है। हालेलुया। इसके लिए वो बंधन को तोड़ना मांगते हैं, परमेश्वर के पास जाने का। परमेश्वर में गलत किया है, मेरे बंधन को, दाऊद का बंधन को कैसा छुड़ाया है वैसा ही हमें भी परमेश्वर छुड़ाना मांगते हैं। हालेलुया। യോഹന്നാൻ का सुसमाचार में 5वां अध्याय का 14 में മനുഷ്യന്റെ പാപം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. मनुष्यों का पाप रोगों का कारण बन जाता है करके लिखा है। യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 5वां अध्याय का 14। पढ़िए हिंदी में। इन बातों के बाद ये यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तुम्हें मैं अभी चंगाई दिया है, अभी आज से तुम फिर से पाप करने के लिए शुरू नहीं करने का, क्योंकि तुम अंधा बन गया था, तुम्हारे अंधेपन को मैं निकाल दिया है, मगर आज से फिर तुम भाव करेगा तो इससे भी बड़ी आपत्ति तुम्हारे जीवन में आ सकता है करके बोलते हैं। हालेलुया। तो कोई कोई व्यक्ति का रोग पाप का कारण हो जाता है, कोई कोई रोग परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए होता है, कोई कोई रोग पाप के कारण शैतान देने वाला रोग होता है। हालेलुया।
तो हमारा रोग किस कारण से मेरे में है करके हमें जानना मांगता है। आमीन। हमारा पापों को कबूल करना मांगते हैं, माफी मांगना मांगते हैं, दिन भर माफी मांग कर प्रार्थना करना मांगते हैं। जब तक हमारा रोग चंगाई नहीं मिले तब तक हमें माफी मांग कर हमें प्रार्थना करना मांगते हैं। इसके लिए परमेश्वर का इस वचन हमें पूरी तरह से परमेश्वर में हो जाने के लिए हमें कृपा देना मांगते हैं। परमेश्वर में हमारा धन मन लगाते हुए, हमारा नजर लगाते हुए हमें प्रार्थना करना मांगते हैं। तो ही परमेश्वर हमारे ऊपर आने वाला रोग आत्मा को निकाल देगा। पर शैतान को परमेश्वर बोलेगा चुप जा करके बोलेगा, निकल जा करके बोलेगा। यदि परमेश्वर में हमारा दिल एकदम वो झुका हुआ औरत के समान हमारा दिल तो परमेश्वर में लगा दो, हमारा नजर खुला है तो हमारा नजर परमेश्वर में लगा दो, हमारे विश्वास को बढ़ा दो, परमेश्वर का प्रवृत्ति हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हम योग्य बन जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें थाम कर रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें थाम कर रखने वाला परमेश्वर है। इसका बाकी अगले दिन हम सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें थाम कर रखने वाला परमेश्वर है। हमारा रोग के कारण हम चिंता करेंगे, ये रोग किस कारण से मेरा जीवन में है, मेरा पाप मेरा रोग का कारण है। तो अभी इसी वक्त हम माफ़ी मांगेंगे। ये वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ ദൈവവചനം അയച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വചനം കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കുവാൻ, ദൈവിക കൃപകളെ പ്രാപിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.